and I'm very excited being here among you all. This is a pleasure and privilege as well. As you know that our today's topic is the philosophy of general relativity. And being a student of physics, you all know that general relativity is the theory of gravity. I hope that you know. It is the theory of gravity because gravity was missing from special relativity. Special relativity is called special because it needed a specific environment in outer space. Not everywhere special relativity could be applied because there was only flat space required in special relativity. And there was a need of general relativity. So general relativity is a generalization of special relativity, in fact. When you generalize a thing, the thing is, for example, a thing is specific and you make it general. So you call it generalization of that specific thing. So special relativity was a specific thing, needed a flat space, and general relativity is a generalization of special relativity, meaning special relativity is just a dibacha, a preface to the actual golden book of general relativity. So the biggest book, general relativity, biggest theory ever in physics, the biggest theory with great math. But एक चीज जो देखी गई है पाकिस्तान में खासतौर पे पूरी दुनिया में आमतौर पे, that is the lack of interest of physics student in general relativity. And what I found is mathematics. Because general relativity is not actually the theory of physics. 90% of the theory belongs to the field of mathematics. Topology, linear algebra, differential geometry. So many mathematical branches are related to the general relativity. Even Einstein needed mathematicians, Grossman, Minkowski, the great mathematicians, you already heard about their names. So this is why the students of physics are hesitant towards it, to the general relativity, because it belongs to mathematics. Moreover, not only it belongs to mathematics, it belongs to philosophy. As you might know, that the biggest topic ever of philosophy is time and space. So special relativity and general relativity, both of them are philosophical in nature and mathematical in nature, and the very least of their part is actually related to the physics. In quantum electrodynamics, you need some special relativity. That's what Feynman did. But in some experimental cosmology, you need general relativity. That's what modern days physicists do. But more, above all, it is just a philosophy. That's why I'm here as a philosopher, as a student of philosophy, to talk about the general relativity. Einstein actually proved that gravity is not a force. And this is something very amazing and beautiful. Because we think that gravity, we feel it, that gravity is a force. We believe and we include it in four fundamental forces. You know about four fundamental forces. Strong nuclear, weak nuclear, electromagnetic, and fourth one is D-gravity. But Einstein proved in 1908 and 1907 that gravity is not a force, it's a geometry. It's a curved space, and that's something else, that's a shape. You can see shapes, but you cannot feel them as force. So how this idea of gravity not being a force came to his mind in the first place? In a very bright day, he was sitting in his office
1907, 1907. And he was looking out the window, thinking about his special relativity. 2 years back, he gave the special relativity as a very special paper in his Annus Mirabilis. Annus Mirabilis is a word in German language meaning the miracle year. That is Einstein's miracle year. 4 papers he published. All 4 of them are very amazing, like photoelectric effect, like Brownian motion, and they are all important papers. One man writing 4 internationally celebrated papers in 1 year. That is amazing. So this is called the miraculous year of Einstein, 1905. After 2 years, he was sitting in office, looking out the window. A very tall building was in front of his eyes. A man was painting something on the roof, on the corner of the roof bricks. And then he imagined that if that man falls, will he feel force on his body? And after that, throughout his life, Einstein said, that was the happiest thought of my life. If you put these tags in Google, happiest thought of Einstein life, you will find this story. The happiest thought of his life, why? Because he realized that the person will not feel any force. If you ignore air resistance, of course. Why? But man is falling. We know that there is an acceleration of 9.8 meters per second squared. We know, we feel it, we use it in our daily life. We employ that acceleration in our physics. But he is proving that this acceleration is false. If acceleration is 0, force must be 0. F equal ma goes wrong in a sense. That if A or G is 0, then F becomes automatically 0. That was his realization. Not yet he proved at that moment, but his realization was that there is no acceleration for a free fall body. We know that Galileo gave us 9.8 meters per second, although Galileo used feet, 32 feet per second. But if you convert feet into meters, they are 9.8 meters per second. So Galileo concluded after the experimentation, he was an experimentalist. There are 2 types of physicists, theorists and experimentalists. Theorists think, they sit on their table and chair, they write mathematics like Maxwell. Maxwell never knew that waves are there. He was just a mathematician. Waves came 12 years after, radio wave came 12 years after Maxwell's work. He was just a theorist. But Galileo was an experimentalist. He used inclined planes. He started falling things from the high buildings, as you might have heard about the Leaning Tower of Pisa, from where he experimented so many times. People say it is a legend, but maybe it is a legend, but he was an experimentalist, it is proved. So, he proved that 9.8 meters per second is the acceleration things fall at. So, now, what is for us here? There are 2 things. One is claimed by Einstein that falling body doesn't feel any force, therefore there is no acceleration. The falling body falls with 0 acceleration. On the other hand, we see, we use, we imply all the time that yes, there is an acceleration of 9.8 meters per second. So there is only way. Test it by ourselves. Fall yourself. Test it. Can you feel the force? Let me show you a thing here. I have created a file for you in a
physics software. This is called Argudo. You should use it. It's a very great software. I have created a very simple accelerometer. Very simple. What is the mechanism behind an accelerometer? Accelerator, जो गाड़ी में भी लगा हुआ होता है. What is the mechanism behind it? It is a very simple mechanism. Look at this picture and you can already find the mechanism here. Socket with equal sized springs, and in the middle you feel a bolt, some sort of weight, and all springs are pulling the weight, so they are now, it is hanging in the middle, right in the middle. There is no change, no squeeze, no squash in the spring. When you fall it, when you drop it, what will happen? Imagine if there is a force while falling, the lowest spring, the bottom spring should be squeezed. Isn't it true? So, try it, because this software is a simulator of physics forces. So, let me slow down the speed here and check it now. There is no acceleration. The object is falling straight down without any acceleration. When it touches the ground, it feels the acceleration. So this is a simulator just made for the physics purposes, and they put everything using the equations in it. It means it is telling the truth. Also, we can do it on our bodies. Let me show you something very interesting. When you feel acceleration, or when you feel any force on your body, you feel it like you are an accelerometer. Why? Because when you go in some rocket outside of the planet Earth, what you feel? 98% of the acceleration on your body, your physique changes when you are being accelerated. So in general relativity and special relativity, it is called that take your clock with you and take your accelerometer with you in your hands and then travel. If you feel your accelerometer is changing, there is an acceleration on your body. If you feel your time is proper, they are called proper time and proper acceleration in the language of general relativity. Whenever you speak proper, it is actually the device with the observer. An observer carrying the device is called the proper device. An observer carrying the device, accelerometer, that accelerometer will read the proper acceleration. So, when you fall, you do not feel any acceleration. Next. आप देख सकते हैं कि on the right side I have put an image of a mobile phone. Why? Why is that? What was the need here in my slide? आपने सुना होगा स्मार्टफोन में एक फॉल प्रोटेक्टर आया हुआ है कि जब स्मार्टफोन गिरता है तो प्रोटेक्टर से परों की तरह से खुल जाता है और स्मार्टफोन as soon as touches the ground वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, वो ब्रेक नहीं होता. आपको जान के हैरानी होगी और लुत्फ भी आएगा कि स्मार्टफोन में जो एक्सेलरोमीटर फिट है वो जब गिरने लगता है फोन तो वो क्या रीड करता है? What acceleration that phone reads? What should be your answer? Zero. यानी अजीब बात यह है कि स्मार्टफोन गिरने लगता है जब तो its accelerometer reads the acceleration of zero. As soon as it reads zero, it starts opening its protector. और अगर आप स्मार्टफोन को अभी अगर आपके पास है तो अभी चेक कर लें. अगर आप स्मार्टफोन को मेज पर रख दें या हाथ में पकड़ लें, what happens then? It reads an acceleration of 1g, 9.8 meter per second squared. That is amazing. When you place it on the top of the table, it reads an acceleration of 9.8 meter per second. And when you drop it and it starts falling, it reads the acceleration of 0. That's why I have put the image here to show you that smartphones reads acceleration 0 while falling. Then it opens its protector. Okay, so this was Einstein's happiest thought that falling object doesn't feel acceleration. Acceleration is 0
proper acceleration is zero. Of course, obviously, when you are standing on the ground and watching the falling object, for you the acceleration is 9.8 meters per second. For you, for that object, acceleration is zero. Because you are on Earth and it is coming towards you. So you can easily feel the acceleration, that's true. But if you are the object and you are being fallen, it means that you will feel no force. And आपने सुना होगा एक लफ्ज़ weightlessness. वो weight तो होता ही force है. W is equal to mg. Mg is weight. When g is zero, W becomes zero. When W becomes zero, meaning weightlessness. And weightlessness, falling bodies feel no acceleration, therefore no force. Okay, so there is a big question here. कि अगर photon हुआ आपके पास, which is a massless object, put the photon in equation Newton gave you, in those two equations, in mg and also this equation, which is gravity equation by Newton. What will happen then? Photon अगर put करें m1 किस m1 m2 होता है ना हमारे पास, m1 m2 या big M small m, इस equation में एक m तो photon होगा. That photon will multiply with the mass. Photon is zero in weight, in mass, and the other object is not zero. Multiply them, what will happen then? Zero. Force will become zero. So automatically Einstein made so many changes at the moment when he saw the falling man in his imagination, and he thought that there are some corrections needed to the Newton equation. And that was the beginning of general relativity. That day was the beginning of the general relativity. When he thought that there are some corrections needed to Newton's theory. Next, again, then he gave us equivalence principle. A very amazing thing, a very interesting thing. This is called the equivalence, meaning barabar hain dono. Equivalence principle is actually the foundation of general relativity. First came equivalence principle and then came the mathematics of general relativity. So equivalence principle tells you that if falling body feels no acceleration, weightlessness, zero force, if falling body feels by itself no acceleration and for itself no acceleration, then it means that falling body is same as floating body in the outer space. An astronaut is floating in the outer space with zero acceleration, and an object falling on Earth, unless it touches the ground, unless even very close, it is very close to Earth, even only 1 foot distance is left, still it is equivalent to the object which is floating in outer space, in deep space, unless it touches the ground. So astronaut will be the same person as a falling body. That was equivalent principle. But there are two aspects of equivalence principle. The first one I have shown you now, and the next is this one. If falling body is hanging in the air, weightlessness, it is equivalent to the astronaut hanging in the outer space. But if falling body is not hanging in the air, not falling, but the falling body is now placed on the planet, like a person standing on the planet Earth, meaning it is also equivalent to a person who is accelerating in the outer space. You know that g amounts 9.8 meters per second. If you take a box, on the right side I have shown it, if you take a box, light a flame underneath the box, just start accelerating the box and make it 9.8 meters per second acceleration. What will happen then? You are no more hanging, you are no more floating. Your feet will automatically touch the ground. बात समझ में आ रही है ये वाली? कि अगर आप एक बॉक्स में हैं और पहले आप फ्लोट कर रहे थे स्पेस में, अब बॉक्स को नीचे से आपने फ्लेम लगाया रॉकेट वाला, बॉक्स ने उड़ना शुरू कर दिया, डायरेक्शन कोई भी हो, डजंट मैटर, फिर भी आपको लगेगा कि वो नीचे वाली साइड है. स्पेस ऐसी चीज है. तो आप उसके फर्श पे एक फ्लेम जलाएं और शूट करेगा, जेट बन जाएगा,
और फिर क्या होगा कि आप जो हवा में उड़ रहे थे, बॉक्स के सेंटर में फ्लोट कर रहे थे, अब वो नीचे से फ्लोर ऊपर आना शुरू हो गया. यू आर नो मोर हैंगिंग इन द मिडल. अब आपके पैर उसको टच कर रहे हैं. और as long as it is traveling with that acceleration, you can even bounce your balls. You can even make it live like on earth you live. So equivalence means the acceleration of a body in outer space is equivalent to a gravitating object. The acceleration exceeds the gravitating object, gets bigger, the higher energy content. So this is the second aspect of what you call equivalence principle. So keep in mind there are two aspects: touch the ground and floating. So if you are floating, you are equal to the astronaut. If you are falling, you are equal to the floating. And if you are standing on planet Earth, it is equivalent to the box which is accelerating. And next, this made Einstein think about the light. न्यूटन सोचता था कि लाइट वेटलेस है, मासलेस है, तो लाइट नहीं गिरती, ग्रेविटी में रोशनी नहीं गिरती. हम अभी तक नहीं सोचते. जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो सोचते हैं कि रोशनी का क्या काम है कि ग्रेविटी में गिरे. ग्रेविटी में तो भारी चीजें गिरेगी ना, भारी ऑब्जेक्ट. तो रोशनी तो मासलेस है, वो कैसे गिर सकती है? बट आइंस्टाइन ने कहा कि इफ द फोटॉन इज फ्रीली फॉलिंग, उसमें इस राइट साइड वाले बॉक्स को देखें, उसमें जो बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा है, तो फोटॉन अगर सेंटर में होता है, इसके यहाँ पे सेंटर पे बॉक्स ऊपर उठना शुरू होता है, तो फोटॉन वहीं रुका रहता है ना. और जब बॉक्स को नीचे से उसका फ्लोर नीचे से फोटॉन को टच करता, तो यही फील आती है ना कि फोटॉन नीचे आ रहा है फ्रॉम द इनसाइड. So if a person is an observer and from the inside looking at the light beam, the beam is coming from the one corner of the box. So the person will see that photons start falling towards the ground, and it means that he thought about the light, that light falls in an accelerating object. For that equivalence principle, he thought that should be the same on a gravitating object. कि वहां पे भी वही होना चाहिए. इक्विवेलेंस है. अगर इक्विवेलेंस है तो लाइट अगर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटेशन भी एक्सेलरेशन ही है, इक्विवेलेंस है. यहां पे भी गिरनी चाहिए. And that was true. So that is actually is provided artificial gravity is created. Exactly. That is the actual gravity. That is the actual gravity, and this is called the artificial gravity. That's why the light bending in like bending in the artificial gravity. Exactly. It should bend in actual gravity. So that was this actually axiom. But the gravity is there. Yes. Why is an actual gravity and another when you Exactly. Yeah. And this is the experiment Arthur Eddington performed. Arthur Eddington कौन है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता चलूं. Arthur Eddington बर्तानिया का ब्रिटिश, आइंस्टाइन फ्रेंड बट नॉट दैट देन, उस वक्त फ्रेंड नहीं था. जंग लगी हुई थी बर्तानिया और जर्मन के दरमियान. 1919 में इसे प्रूव किया. 1919 में खत्म हुई पहली जंग से. और जंग लगी हुई थी जब उसने अपने रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस के सामने प्रपोजल दिया कि मैं आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता हूं. लेट मी डू इट, गिव मी द फंड्स. 550 रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स अपोज्ड इट. आज हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन देखें ना, क्यों उन्होंने अपोज किया होगा? जब इंसान का माइंड सेट क्या होता है कि तुम एक जर्मन के साइंसदान को प्रूव या डिसप्रूव करोगे. देन ही एक्चुअली clicked them. He said, I want to disprove. I want to make him defeated. So, उसके बाद क्या हुआ कि उसने funds ले लिए. There was a solar eclipse, a full solar eclipse, and in that eclipse, he performed the experiment. अब experiment को समझ लें, और बड़ा प्यारा experiment है अगर आप तवज्जो दें तो. सोचे कि रात का टाइम है और सम पोर्शन ऑफ स्काई, उसकी आप तस्वीर लेते हैं, जस्ट फोटोग्राफ, एंड देन ब्रिंग बैक दैट फोटोग्राफ ऑन योर टेबल
and measure the distance of stars. Stars का distance पैमाने से, फुटे से, scale से measure करें, and then write it down on some notebook. And what you will do after that? अगले दिन सुबह, when sun is there, sun is a very massive and gravitating object. Look at the same portion of the sky, जहां पे आपने रात को फोटोग्राफ लिया था, and now think about it कि अगर sun उस portion से गुजर रहा हो, now a great gravitating object is passing the same area, the same portion of the sky, and behind the sun you have already photographed stars and measured their distances. Now what Einstein thought कि अगर उसके पीछे से जो सितारे हैं वो रात को फोटो ले लिया तो उसका डिस्टेंस फर्ज करें 12 सेंटीमीटर था स्केल पे, तो दिन में सूरज जब उस जगह से गुजर रहा होगा, इतना बड़ा ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट, तो वो लाइट अगर बेंड होती है तो पीछे से आते हुए स्टार्स की लाइट जो है सूरज के पास आने के बाद बेंड होनी चाहिए. एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग की रूल से, जो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स अगर आपने सुन रखी हो तो, एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग की रूल से स्टार्स वही वाले जो 12 सेंटीमीटर दिखाई दिए थे, दे शुड नाउ अपीयर अपार्ट. अब उन्हें ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से दूर दूर नजर आना चाहिए. लेकिन सूरज तो बहुत रोशन होता है, सूरज के पीछे वाले सितारे कौन देखेगा? तेज सूरज की रोशनी. सो व्हाट यू नीड? अ सोलर इक्लिप्स. जब पूरा सूरज कवर हो जाए सोलर इक्लिप्स में, देन टेक अनदर फोटोग्राफ एंड मैच बोथ ऑफ देम, द प्रीवियस वन, द न्यू वन. और ये किया था आर्थर डिंगटन ने, और उसने प्रूव कर दिया कि यस, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट इज हैपनिंग. रात को जो हमने ली थी पैमाइश, उससे बहुत ज्यादा फासले पे नजर आ रहे हैं when sun is in their way. प्रूव हो गई. But there was an objection on the equivalence principle, a very interesting one. Objection ये है कि अभी आपने सुना equivalence principle के बारे में कि जो outer space में object है, like a box, वो भी exactly जैसे मैम ने कहा कि artificial gravity है. So if you drop two objects inside the box parallel to each other, और एक साथ ड्रॉप करें parallel to each other, you drop two objects, they should create a trajectory parallel to each other. उनकी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए जब वो नीचे गिर रहे हैं. But that doesn't happen on earth. जमीन पे जब दो ऑब्जेक्ट आप पैरेलल गिराते हैं तो इनफैक्ट साथ साथ हो ना, यहाँ पे अभी इस छोटे टेबल पे तो पैरेलल ही नजर आएगा. जरा बड़े पैमाने पे उसे ले जाए, बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना 1000 मीटर का, देन वॉच टू एप्पल्स 1000 मीटर के फासले पर ऐसे पकड़े और जमीन पे फेंक दे, वो तिरछे आएंगे जमीन पे. और जो ऑब्जेक्शन करने वाले लाइक ग्रासमैन, बड़े बड़े साइंसदान थे, मैथमेटिशियंस थे, उनका ख्याल था कि ग्रेविटी इज देयर, ग्रेविटी इज नॉट एन इल्यूजन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, they are being closer to each other while falling. So that was an objection on the equivalence principle. This actually corrected the course of equivalence principle in a manner कि उसके बाद एक लफ्ज यूज किया गया, आज तक होता है यूज equivalence principle के साथ. Equivalence principle is locally true. ये local का लफ्ज इसमें ऐड हो गया. अब तक बोला है कि now equivalence principle is true but locally. Because tidal effect has to be accounted for. Tidal effect, tidal forces, you know, जिसकी वजह से सूरज सॉरी वो क्या कहते हैं, चांद की वजह से जो सूरज समंदर में जो टाइड्स पैदा होते हैं, so tidal forces that must be accounted for. अब आ गया इस ऑब्जेक्शन का जवाब जो है, that is actually the thing. ये वो मकाम है जहां पे लेक्चर में आपने टर्न लेना है एक बहुत खतरनाक सफर की तरफ. इसका जवाब जो है वो है कर्व ज्योमेट्री 1908. अगर ये ना सवाल ऑब्जेक्शन उठाया जाता तो कभी इसका जवाब भी ना आता. अगर आपको स्लाइड साफ नजर आ रही है तो मैंने 2 एप्पल बनाए हैं. आइंस्टाइन की तरफ से जो जवाब आया 10 साल बाद आया, फौरन अगले दिन नहीं आ गया. When objection was placed, there was no answer to it. हाँ, जवाब आ गया लेकिन वो ज़बानी आया. जिसका प्रूफ होता है मैथमेटिकल, वो नहीं आ सकता था unless he studied
unless he must study the curvature. Without curvature, you cannot get the answer to that question. जो objection था equivalence principle. अब curvature में आ गया बीच में first time तो mathematics आ गई, physics साइड पे हट गई, mathematician दरमियान में आ गए, topology के उस्ताद दरमियान में आ गए, ग्रॉसमैन आ गया दरमियान में। आइंस्टाइन को तो उस वक्त मैथमेटिक्स वो आती भी नहीं थी, इसलिए 10 साल लगे। और 1914 में पहली बार विदाउट बिग लैम्डा, और 1915 और 16 में दूसरी बार उसने अपना थीसिस मुकम्मल किया, जिसमें उसने इसका जवाब कर्व की जबान में मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से मरकरी का ऑर्बिट भी सेट हो गया जो न्यूटन से सेट नहीं हो पा रहा। लेट मी शो यू व्हाट इज दिस कर्व। दिस इज एक नया लफ्ज आपके सामने मैं बोलने लगा हूं, सुना हुआ आपने पहले होगा, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ना सुना। द जियोडेसिक ऊपर लिखा हुआ भी है। आंसर टू द ऑब्जेक्शन इज द जियोडेसिक। A geodesic is a straight line, just a straight line, as you draw on blackboard, a straight line. But a geodesic is such straight line that exists in a curved space. कर्व स्पेस में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसकी बड़ी सादा एग्जांपल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान। कि अगर आप दो पिलर्स के दरमियान एक रस्सी बांध दें तो लीस्ट एक्शन या लीस्ट एनर्जी एक्शन आप पढ़ते हैं, क्वांटम में भी पढ़ते हैं। आप दो पिलर्स के दरमियान एक रस्सी बांध दें और उसको जब छोड़ेंगे आप, तो वो कौन सी कर्व पे रुकेगी? उसके लिए 1000 ऑप्शन है, बट वो एक खास जगह पे जाके रुकेगी जहां पे उसका इक्विलिब्रियम बनेगा, उसके हर इलेक्ट्रॉन और एटम का ऐसी होके गिरेगी ढीली होके खास जगह पे जो उसकी पसंदीदा जगह हो, क्योंकि वहां एनर्जी कम से कम सर्व करनी पड़ रही है एटमों को। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स नीड टू बी रिलैक्स्ड। इक्विलिब्रियम इज द डिमांड ऑफ एवरीथिंग, so that least action is actually also the geodesic in outer space and even on earth. So वो जो लाइनें जो वो रस्सी ने बनाई है कर्व, बड़े पैमाने पे वही कर्व है जहां पे भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जब उस पर चलेगा तो ऑब्जेक्ट विल यूज द लीस्ट एनर्जी, सबसे कम। ओके, सो जो सेब जमीन की तरफ गिर रहे होंगे, वैसे एक बात देखिए, लेफ्ट साइड पे जो मैंने लिखा 2D प्रोजेक्शन ऑफ द फैब्रिक, इसको कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। स्पेस टाइम फैब्रिक पे हम डिटेल में बात फिर किसी मौके पे करेंगे। जस्ट इसके बारे में ये सोचे कि आइंस्टाइन ने ये कहा कि ग्रेविटी कर्व है और पूरी कायनात में एक फैब्रिक सी मौजूद है, स्पेस टाइम फैब्रिक उसका नाम है, और उसमें एक कोऑर्डिनेट टाइम का है और 3 कोऑर्डिनेट स्पेस के, एक्स वाई जी एंड टी। ये सब मिन्काउस्की ने बनाई है। तो ये 2D प्रोजेक्टर ट्रू नहीं होती प्रोजेक्शन, आपको यूट्यूब पे हर जगह पे ये वाली मिलेगी जो बच्चे को कंफ्यूज करती है। अ लिटिल बिट ट्रूअर इज दिस राइट साइड। अगर आपको साफ नजर नहीं आ रही है, ये असल में चारों तरफ से इसके वो जाल बना हुआ है, चारों तरफ होना चाहिए, वो ट्रू होगा जमीन के। तो कर्व पे से जाएंगे तो लगेगा कि वो एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन पर ही होंगे, पैरेलल लाइंस पैरेलल ही रहेंगी, क्योंकि जियोडेसिक पैरेलल कहलाते हैं, हालांकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। अभी आप देखिएगा आगे कि जियोडेसिक एक दूसरे को क्रॉस करने के बावजूद पैरेलल क्यों कहलाते हैं। लुक एट दिस इमेज। एक जमीन है जिसमें एक लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइनें होती हैं। जो लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जा रही हैं, ये सारी की सारी लाइनें जियोडेसिक, ये सारी की सारी लाइनें ग्रेट सर्कल्स कहलाती हैं, ये सारी जियोडेसिक है। लेकिन जो एक लाइन लैटिट्यूड में पाई जाती है वो है इक्वेटर, सेंटर में एग्जैक्टली। तो वो एक लाइन रेड सर्कल और जियोडेसिक है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है वो सारी की सारी जियोडेसिक है। अब एक लाइन जो इक्वेटर है उस पर जो लोग खड़े हो जाए काफी से डिस्टेंस पे, और आप उनसे कहें कि पैरेलल चलना शुरू कर दो, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलना। अब वो बेचारे ये सोचकर कि हम सीधी लाइनों पे जा रहे हैं तो हम कभी आपस में नहीं मिलेंगे, सडनली दे फील देमसेल्फ
getting closer unless they reach the North Pole. और North Pole को एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं. How this can happen if the lines are parallel in Euclidean geometry? You know that. Two parallel lines never meet according to Euclidean geometry. But these two parallel lines are meeting each other on North Pole. Why is this? Because these two parallel lines are geodesics. Geodesics meet each other indeed. Being parallel, still they meet. Why? They are great circles. एक चूड़ी ले, जो औरतें पहनती है चूड़ियां, दो चूड़ियां ले, उनको एक दूसरे में फंसा के घुमा दे, तो एक दूसरे को क्रॉस करके ऐसे जैसे वो प्लस का साइन होता है, ऊपर नॉर्थ पोल में नजर आएगा, नीचे भी नॉर्थ नजर आएगा, उसमें तो दोनों पैरेलल हैं, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे को क्रॉस भी करें. So this is happening here. So the geometry is involved in there because of the shape of the earth as well as the gravity. Exactly, because the shape of the earth. If it's supposed to be that the earth is flattened, probably they ever and never meet together. Yes. If the earth is not flattened, that's Yes, why they yes. meet together. Euclidean geometry is a flat geometry. Exactly. And अगर आप प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में कभी आप हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती फिजिक्स में, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. उसमें two parallel lines can make an angle of 90 degree in a projective geometry. अब एक सीधी सड़क पे ऐसे खड़े हो जाए, फिर उस सीधी सड़क की दोनों साइडों पे आप लाइन लगाएं, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री है ना. ये तो आइस के लिए है ना, ये तो ऑप्टिक्स के लिए होती है. ये ज्योमेट्री आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाई जाती है ना. ऑप्टिक्स इज अ फील्ड ऑफ फिजिक्स. अब ये देखिएगा कि ये दोनों बंदे जो एक दूसरे के नजदीक होते चले गए, अगर इनको पता ना होता, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि दे आर ट्रैवलिंग ऑन सरफेस विच इज एक्चुअली अ स्फीयर. अगर इनको पता ना होता, अब तो हमें पता है माजी के इंसान को तो नहीं था, व्हाट वुड दे से? व्हाई वी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर? They would definitely say there is some sort of force, a pseudo force pushing them inside. इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, जिनको अंदर की तरफ धकेल. That was the answer to the question, to the objection. कि वो जो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कह रहे हैं कि सेब एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं, तो ग्रेविटी फोर्स है, वो जमीन पे दो चलने वाले बंदे भी फोर्स अपने आप को कह सकते हैं कि हमें वो फोर्स अंदर धकेल रही है, हालांकि वो एक जियोडिजिक पर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ जियोडिजिक. मशहूर इक्वेशन है बाय द वे, जो आपने फॉर्म देखी होगी या देखेंगे, उसमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे टेक. बट यहां पे जो मैंने लिखी है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर है. लेफ्ट साइड पे आप देखें. आप में से कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि दिस इज एक्चुअली समथिंग यू ऑलरेडी नो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस टेलिंग यू? आप बताइए. Partial derivative is taken of velocity with respect to time. What is this? Acceleration. Acceleration. So this equation, the equation of geodesic, is having on one side of it the acceleration, the normal acceleration, the Newtonian acceleration. Partial derivative is taken with respect to proper time. This is tau, the proper time. The proper time I have already told you. The clock carried by the observer himself is called the proper time. So proper time is the time of falling body. And now look at this. This is acceleration clearly, but on the left side, on the right side of the equation, there should be some variable containing some number telling you some value of that acceleration you are watching right now. But that is a curve. ये अजीब बात थी जियोडिजिक में कि एक तरफ एक्सेलरेशन है, दूसरी तरफ एक्सेलरेशन की अमाउंट आनी चाहिए थी, बट दूसरी तरफ एक शेप है ज्योमेट्री की. अब ये कर्व क्या है? ये रेड जो ऑब्जेक्ट है, बिग गामा, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टोफर सिंबल. अ वेरी अमेजिंग थिंग इन मैथमेटिक्स, द क्रिस्टोफर सिंबल. क्रिस्टोफर सिंबल की इक्वेशन पर लिखी हुई, मैं उसमें जाता नहीं हूँ, जरा पेचीदा है, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि यहाँ पे अगर मेरी लाइट इसमें ऑन होती है, तो यहाँ पे आप देखिए कि देयर आर पार्शियल डेरिवेटिव्स टेकन ऑफ मैट्रिक टेंसर. आप ऑलरेडी पहचानते होंगे मैट्रिक टेंसर, कुछ स्मॉल जी के साथ न्यू लिखा हो, या कोई भी टू इंडिसेस हो उसकी, तो वो मैट्रिक टेंसर होता है. और ये मैट्रिक टेंसर है जी
AD, or the metric tensor with respect to coordinate in question, x naught, x1, x2, x3, meaning x, y, z and t with respect to coordinate in question. अब जो metric tensor के partial derivative हैं, ये इनकोड करते हैं बिल आखिर उस कर्व्ड स्पेस को, और सब जब जमा हो जाते हैं तो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल आती है. ये खालिस मैथमेटिक्स से इसका नहीं जाते, लेकिन जो क्रिस्टोफर सिंबल आ जाती है वो क्या दे रही होती है हमें? सम सॉर्ट ऑफ कर्वेचर. हमें वो एक ऐसी कर्वेचर की शेप दे रहा है. So these are actually the tensors. You are just give the summation from A is equal to 1 up to n. So it's a one-dimensional equation which tells us that they have so many components, and so this gives actually the trajectory, the line trajectory, Yes. which is probably a curve. Yes. From out there. If the partial derivatives you are taking here give you some value of 0, then the space is flat. If it is giving you some value in numbers, the space is curved. That is something Schwarzschild matrix, FLRW matrix, all matrices that give you black holes, that give you static black holes, that give you revolving black, all those metric black holes are using this metric tensor basically. This Christoffel symbol. और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ. सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा कि I hope you are already using software GeoGebra, because GeoGebra is very famous among the students of physics and mathematics. Everybody uses it. यहाँ पे नेट नहीं है, चले नेट नहीं है तो वो नहीं यूज होगा. वापस आ जाते हैं. उसमें मैंने आपको ये दिखाना था कि I would have taken a sphere or maybe some curved space, and then GeoGebra gives you the ability to zoom in. बहुत ज्यादा zoom in करें उसे, तो ultimately you will find yourself on a flat space. Meaning, if you are taking affine connections or maybe Levi-Civita connections, then अगर ये लफ्ज़ आप already ये term से अगर आप already वाकिफ हैं तो then you are getting my point कि फिर आप उस स्पेस पर भी जिस पे आप इस मतलब फर्श पे खड़े हैं, हमें पता है जमीन फ्लैट नहीं है, हमें पता है जमीन राउंड है. How can we know? There are 2 types of geometry: intrinsic geometry, extrinsic geometry. If you are using your 2-dimensional surface, walking on that surface, you are in some sort of intrinsic geometry. आप geometry के अंदर हैं. Now take yourself outside of the planet. अब आप extrinsic हो गए और now you are watching the geometry from extrinsically, and now you are watching the geometry is round. So ये जो क्रिस्टोफर सिंबल है, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ बनाई, लेकिन आपकी आज चूंकि हाल चेंज हो गया है तो लाइट की वजह से आपको ये नजर नहीं आ रही, मुझे जंप करना पड़ेगा आगे. बस let me tell you that they are basis vectors, the red one, the blue one, the red one, the blue one. Basis vector is a very, very important vector in physics, even in quantum, even in general relativity, or everything. It is basis vector. Next हमारे पास है जी, how do we get Christoffel symbol? अब देखिए सिंपली बड़ी सादा सी ये चीज है. जरा देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आ गया हूँ. ये देखिए कि यहाँ पे वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है. एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 शो किया गया है because on the geodesic acceleration is always 0 for the object. On the geodesic there is no tangential acceleration in that, even it is moving on a curve. आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब कोई चीज मुड़ रही होती है तो एक्सेलरेट होती है. बट जियोडेसिक इज अ स्ट्रेट लाइन, looks like moving, turning, but it is not turning. It is in fact a straight line. That is why the acceleration is not tangential here. The acceleration is still 0. So geodesic पर acceleration object का 0 होता है. अब जरा देखिए ये नीचे मैंने क्या डाला है. नीचे कंपोनेंट्स हैं. आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा था कि किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को या किसी भी वेक्टर को when you take a vector you distribute the velocity into its components.
resolve it. यस सो अब जब देखिए यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये सही काम कर मैं हाथ से उसमें x और t लिखा हुआ है लेकिन 4 डायमेंशनल स्पेस में x, y, z और t होता है तो मैंने यहाँ शॉर्ट करने के लिए 2 लिखे हैं आप चारों लिख सकते हैं इस जगह पे कि ये कंपोनेंट है, ये बेसिस वेक्टर है, ये कंपोनेंट है, ये बेसिस वेक्टर है। इसी तरह से बेसिस वेक्टर की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आइंस्टाइन नोटेशन लिखी हुई है, सिंपल करने के लिए इसको लिखा गया है कि बेसिकली समेशन की एक नई स्टाइल है जिसको आइंस्टाइन का समेशन साइन कहते हैं। इसमें सम का साइन नहीं डाला जाता बट जो इसके सबस्क्रिप्ट और इसके सुपरस्क्रिप्ट के दरमियान रिलेशन होता है उसी से अंदाजा कर लिया जाता है कि maybe there are some summation happening here, summation this is summed with this one और चारों जब सम हो रहे होंगे तो हम इसको इस समेशन नोटेशन में लिख के देखते ही समझ जाएंगे कि they are actually components being summed. अब with respect to proper time, with respect to proper time, now look at this. जब ये समेशन के साइन के साथ लिखा तो मकसद क्या था, मुझे यहाँ इस क्लास में लिखने की क्या जरूरत थी? Actually, I wanted to show you the use of product rule here, because when you use the product rule in calculus, you use it for both of the terms. Then after that you add them. So अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस कंपोनेंट का भी और पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस बेसिस वेक्टर का भी. After that you will have to sum it. अब यहाँ पे देखें कि ये जगह जो जिसको मैंने बाकायदा बॉक्स लगाया है, this is very very important thing. This is the basis vector. This is this red and blue vector. If you watch the animation, the basis vector is still changing, but the actual invariant vector can never change. अगर मैं यहाँ परमानेंट फिट कर दूं इस रूलर को तो ये रूलर कभी भी चेंज नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन अगर आप उस तरफ से आए और बीइंग एन ऑब्जर्वर अपना ड्रॉ करें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स तो आपके लिए इसकी कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। मैं इधर से आऊं और मैं अपना फ्रेम ड्रॉ करूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मेरे लिए इसके बेसिस वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी, मीनिंग कि बेसिस वेक्टर चेंज ऑल द टाइम but invariance never change. Invariances never change. इसका मतलब ये है कि जो object on the geodesic traveling with zero acceleration still having it is having changed its basis vector all the time. जैसे कि मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया है. What does this mean? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन हो बेसिस वेक्टर कहां से कैसे चेंज होता हुआ आ रहा है तो आपको क्या पता चलेगा कि अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट जो ग्रिड है ऑब्जेक्ट के नीचे वो ग्रिड जो है वो कर्व्ड है, वो ग्रिड जो है वो असल में चेंज हो रही है जिसकी वजह से बेसिस वेक्टर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट तो अभी भी अपनी ट्रेजेक्टरी पे नॉन एक्सेलरेटेड फॉर्म में है। ये मैं स्किप कर लेता हूं क्योंकि मैं बात ज़बानी कर चुका हूं। मैंने कहा कि जस्ट लेट्स रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 हाई स्कूल, उसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट करें एक वेलोसिटी आपके पास है जिसका मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर पर आवर है और उसकी डायरेक्शन जो है वो 30 डिग्री पर वो एक पॉइंट है जो जिसमें वो पहुंचती है 100 किलोमीटर चलकर 30 डिग्री के एंगल बनाती हुई। होना ही चाहिए था कि अगर ये सारी की सारी 100 मैग्नीट्यूड x पर होता तो इसकी लेंथ पूरी 100 नीचे होती, या y पर होता तो इसकी लेंथ पूरी 100 ऊपर होती। अब इसकी लेंथ यहाँ पे 86 तक आई है और इधर इसकी लेंथ 50 तक आई है बिकॉज x cosine of 30 will give you 50 and x sine of 30 will give you 86 point something. इसका मतलब कि वेलोसिटी कंज्यूम पूरी की पूरी नहीं हुई बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो कंपोनेंट्स में और इसीलिए थोड़ी थोड़ी कम हो गई हंड्रेड्स। ये एनालॉजी असल में बहुत ज्यादा यूज होती है स्पेशल रिलेटिविटी में भी और जनरल रिलेटिविटी में। यहाँ देखिए स्पेस टाइम कंटिन्यूअम के से पहले मैंने ये स्लाइड इसीलिए दिखाई है कि ये हमारा पुराना फ्री स्पेस है एक्स वाई जेड एंड सो टाइम अलग चीज है, उसको इसके साथ अटैच नहीं किया जाता था। मिन्काउस्की ने क्या किया कि मिन्काउस्की ने आइंस्टाइन के बाद 1908 में दिया उसने
और मैं आपको बताऊं आइंस्टाइन को इतराज था इस पे. He was very hesitant. He was never going to accept it. जब उसको मिन्कोव्स्की ने ये स्पेस टाइम दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसने रियलाइज किया कि मिन्कोव्स्की इज राइट. तो उसने फिर आइंदा वरना जनरल रिलेटिविटी आती ही नहीं है. तो मिन्कोव्स्की ने स्पेस टाइम दिया जिसमें अब स्पेस के 4 कोऑर्डिनेट्स स्पेस टाइम के x y z एंड t, और t इज द कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस नॉट द टाइम. फिर दोहराता हूं मैं, ये बहुत बड़ी बात है. अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर आधा चैप्टर तो लिखा द रिकंस्ट्रक्शन. टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज नॉट a coordinate of time, it is a coordinate of space. फिर से क्योंकि इंट्यूटिवली आता ही नहीं दिमाग में कि टाइम इज अनदर कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस. x y z, अगर इसका नाम t की बजाय कोई और रख दे, m रख दे, फिर शायद आपको लगे कि हाँ अब लफ्ज बदल गया. वो t कंफ्यूज करता है. टाइम इज नॉट, बल्कि हमारी स्लाइड में मैंने किया भी है. देयर इज, इसी पे ऑब्जेक्शन किया इकबाल ने. द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में इकबाल ने लिखा है कि देयर इज एन इनकमेंसरेबिलिटी बिटवीन. इनकमेंसरेबिलिटी क्या होती है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायमेंशंस एक होने चाहिए कैलकुलेशंस के लिए. अगर डायमेंशंस डिफरेंट है तो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते. वो सेकंड में होता है. जब t सेकंड्स में होता है तो हाउ कैन यू ऐड द t विद xyz तो मीटर्स में होते हैं. यहाँ मैंने लिख भी दिया x मीटर्स में, y मीटर्स में, z मीटर्स में. तो फिर ct लिखा उसने. ct लिखने से उसको मीटर्स में बना देता है. यहाँ पे हल भी हुआ पड़ा अगर आप देखते हैं कि c होता है मीटर पर सेकंड और t होता है s सेकंड. तो ये आप क्रॉस कर दे तो ऑटोमेटिकली मीटर आ जाएगा. सो removing the incommensurability, now it has become the 4th coordinate of space. Time has become the 4th. Now time will be measured in meters. कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी टाइम को मीटरों में मेजर करे, तो इसका मतलब टाइम has become a dimension of space now. So you will have to keep in mind that time is no more the dimension of time. It is another point. यही वजह है कि अगली स्लाइड में मैंने लिखा भी है, या उससे अगली में दिखाऊंगा आएगी. तो यही वजह है कि इसको हम x नॉट लिखते हैं. टाइम को हम x नॉट और x को हम x1 और y को हम x2 और z को हम x3. x नॉट x1 x2 x3. अब यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब आपको बात बताने लगा. अनइंट्यूटिव सी, कोई भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था जब मिन्कोव्स्की ने दी थी, और यही एक्चुअल में बात थी जिस पर आइंस्टाइन कहता था कि ये अनएक्सेप्टेबल है. जब मिन्कोव्स्की ने कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया में, आप भी, मैं भी, दरख्त भी, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं. अजीब बात है कि एक पत्थर जो, एक पहाड़ जो है, वो स्पीड ऑफ लाइट से, रोशनी की रफ्तार से मूव कर रहा है. दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल टू इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड. सो आइंस्टाइन ने बहुत देर से इसको कबूल किया. जब सब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो c है, तो फिर दरख्त की स्पीड कैसे c होगी और बिल्डिंग की स्पीड कैसे c होगी? लेट मी शो यू. पीछे मैं आपको दिखाया हूं कि वेलोसिटी अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है. Always multiply, you will have to multiply its basis vector with it. But होती डिस्ट्रीब्यूट है. एक ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी होता है, उसकी सारी की सारी c जो है वो यूज हो रही होती है उसके टाइम वाले कंपोनेंट में. टाइम वाले कंपोनेंट में सारी. अभी इस वक्त हम सब स्टेशनरी फॉर्म में हैं. हम सब स्पीड ऑफ लाइट से मूव तो कर रहे हैं, मगर किस कोऑर्डिनेट में? ct के कोऑर्डिनेट में, x नॉट में. एग्जैक्टली हम x नॉट में मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट. ये बड़ा अमेजिंग और बड़ा ब्यूटीफुल आइडिया है. जरा सोचें, आप जान तो पहले से चुके हैं 9th से कि डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वेलोसिटी कंपोनेंट्स में. सो जब रुके हुए होंगे तो सारी की सारी आपकी स्पीड तो कंज्यूम हो रही है. टाइम में घड़ी टिक टिक कर रही है, आप मूव करते जा रहे हैं आगे फ्यूचर में. फ्यूचर आपका एक रास्ते का नाम है. फ्यूचर. एक बात यहाँ पे बड़ी मैं आपको दिलचस्प बताता चलूं. माजी में हम लोग समझते थे, एक एनालॉजी बनाते थे दरिया की, कि टाइम इज लाइक अ रिवर. वी आर लाइक अ पेबल ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. वी आर लाइक अ स्टोन इन द ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. दरिया हमारे ऊपर से बह रहा है. मरूर जमानी, टाइम गुजर गया, इमारत पुरानी हो गई, टाइम इसके ऊपर से गुजर गया. पाइन टाइम दरिया था, इमारत के ऊपर बह रहा था. आइंस्टाइन ने सारा नजरिया खत्म कर दिया. आइंस्टाइन कहते हैं टाइम इज लाइक अ टनल, टाइम इज लाइक अ रोड, टाइम इज लाइक अ सुरंग.
वो वहीं पे है, फ्यूचर फिक्स्ड है, वो वहीं पे खड़ा हुआ है टाइम. You are walking into the tunnel like this. So walking का मतलब पाँव नहीं घुमा रहे, आप पत्थर भी हैं, तो you are traveling into that tunnel. Your future will come to you. जैसे कहना ना पिशावर आ गया, आप जी चरसदा आ गया, गाड़ी में बैठे होते, चल रहे होते, आप जी पिशावर आ गया, आप चरसदा आ गया, वो आ नहीं गया होता, आप आ गए होते. Same like that you will have to say that walking into the tunnel, you will have to say that मेरा जवानी आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया है. This is your future milestones. They are your future milestones. तो हमने जो टाइम में डिस्ट्रीब्यूट की सारी, और x भी 0 कर दिया, y भी 0 कर दिया, z भी 0 कर दिया, मीनिंग x पर भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर रहा, y पर भी ट्रैवल नहीं कर रहा, z पर भी ट्रैवल नहीं कर रहा. तो आप लिखेंगे x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, but t equal to c. It means you are stationary now. So एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रुके हुए की भी होती है, but in the form of stationary, in the form of walking into the tunnel. इसमें ये मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए यहाँ पे रोकूंगा. इसमें सिर्फ बताना ये है कि ये जो 45 डिग्री है, ये लाइट की रे ये स्लोप ऑफ 1 बनाने के लिए, 1 की स्लोप लेने के लिए मिन्कॉस्की ने ये किया था कि उसने यहाँ पे नीचे की जो टिक्स हैं स्पेस टाइम में, वो लगाए 1 ls, 2 ls, 1 light second, 2 light second, means 3 times 10 to the 8 meter, 3 times 10 to the 8 meter यहाँ तक, 6 times 10 to the 8 meter यहाँ तक, 9 times 10 to the 8 meter यहाँ तक, 12 times 10 to the 8 meter यहाँ तक. ये टिक्स लगाने के लिए, ताकि ऊपर जब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड लगा होगा, और फिर जब हम इसको लगाएंगे कि आप रोशनी को मार्क करो इस स्पेस टाइम में, तो ऑटोमेटिकली वो 45 पे चली जाएगी. अदर देन दैट देयर वाज नो मीनिंग ऑफ इट. लेकिन इस वजह से ये चीज सामने आई जो आपने बड़ी देखी होगी वीडियोस में, तस्वीरों में, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द लाइट कोन. लाइट कोन, द कोन ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट. ये नीचे पास्ट है, ये ऊपर फ्यूचर है. ये आपका जो खत है, ये वाला, ये काला ब्लैक, ये खत टाइम का है, और ये हाइपर स्पेस एक्स वाई जेड की स्पेस है. बाद इसको मैंने कहा था मैं टाइम नहीं लगाऊंगा. अब इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि आइंस्टाइन की जब थ्योरी आई, तो इसकी इंटरप्रिटेशन सबसे अच्छी एक रूस के मैथमेटिशियन ने की, जिसका नाम था ऑस्पेंस्की. क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे. People were hesitant to accept time as the fourth dimension of space. So he actually proved that time is the fourth dimension of space in that manner. If you have a point with no direction, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है पॉइंट में अपेरेंटली. अब अगर आप इसके साथ एक और पॉइंट लगा दें, ऑटोमेटिकली a direction will be appeared. क्या अब एक पॉइंट फर्स्ट करें आपने यहाँ लगाया राइट साइड पे, तो पता चल गया ना कि आप एक पॉइंट राइट साइड पे मूव करना चाहता है या राइट वाला लेफ्ट साइड पे मूव कर. देयर इज नाउ सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन इन इट. इसका मतलब जब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो आपने एक डायरेक्शन पैदा कर दी. When there is no direction in some object and you create by force a direction, it will give you a new dimension. This is a very great philosophy. Object having no direction, forcefully put a direction in it, it will give you a new dimension. This object is called zero-dimensional object. Put another point with it. Now you have a line. And a line is a one-dimensional object. Again, ये जो रॉड मेरे हाथ में, फुटा मेरे हाथ में है, इसको समझ लें कि ये लाइन है. अब ऑस्पेंसी का प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करें कि कॉपियां लगानी है इस लाइन की, क्योंकि हमने नुक्ते की कॉपी लगाई थी, लेकिन लगानी उस डायरेक्शन में है जो डायरेक्शन इसमें नहीं है. अब इसमें तो एक डायरेक्शन राइट साइड वाली है, एक डायरेक्शन लेफ्ट साइड वाली है, तो ये तो है. जो नहीं है वो कौन सी है, कोई बताएगा? अप एंड डाउन. तो इसकी कॉपी इसको अप अगर रखना शुरू कर दे, यू विल हैव दिस ऑब्जेक्ट. एक नई डायमेंशन क्रिएट हो गई. अब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, सरफेस. अ सरफेस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. अब प्रिंसिपल को अगेन फॉलो द रूल जो ऑस्पेंस्की का प्रिंसिपल है. क्या कि फाइंड द डायरेक्शन दैट इज नॉट बीइंग कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट एंड पुट द कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट डायरेक्शन फोर्सफुली. सो ये अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये समझ लें कि ये पेपर है, जाहिर है इसकी शीट फ्रंट साइड तक देखें तो 2 डायरेक्शनल सरफेस बन चुकी है. कौन सी डायरेक्शन इसमें नहीं है? फ्रंट एंड बैक. अगर इसकी कॉपीज को फ्रंट या बैक में जोड़े तो किताब से नहीं बन जाएगी. दिस विल गिव यू अ न्यू डायमेंशन एंड नाउ ऑब्जेक्ट विल बिकम अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट.
0 डायमेंशन से 1 बना, 1 से 2 बना, 2 से 3 बन गया. फॉलो द प्रिंसिपल फर्दर. ऑस्पेंस्की ने कहा कि अभी भी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि what direction a 3-dimensional object doesn't contain in it, put the copies of that 3-dimensional, first करें बोतल 3-dimensional है, put the copies of this bottle in that direction which is not being contained in the bottle and you will have a new dimension. और वो है टाइम. मैंने कहा था मैं इस पर नहीं लगाऊंगा स्लाइड पे, फिर कभी मैं हाजिर हुआ तो मैं बताऊंगा. ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ऑस्पेंस्की. टाइम की डायमेंशन में 3D के ऑब्जेक्ट की कॉपियां जुड़ती हैं इन ईच सेकंड. एक्चुअली फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इमेजिन कि वो कॉपियां उसी के ऊपर आ रही हैं ऑन टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम. बस एक सवाल जो पैदा होगा आपके ज़हन में कि अगर इसकी कॉपियां इसी के ऊपर आ रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम तो एनर्जी कंटेंट बढ़ते जाना चाहिए. उसका जवाब आपको क्वांटम फिजिक्स देती है कि अशराइट्स एंड क्वांटम फिजिक्स सपोर्ट दिस आइडिया. अशराइट मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनका भी एक नजरिया है, वो भी यही सपोर्ट करता है इसको, और क्वांटम फिजिक्स भी इसी को सपोर्ट करती है. क्यों? क्योंकि यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज. Nobody is sure about the existence of a particle there. Everyone says that this is just 95% of the probability. कि ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, किस स्टेट में एटम है? जरा बताइए कि इन बिटवीन वन स्टेट टू द अदर जो जगह है खाली, ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद पहला शेल है, दूसरा शेल है, फिर तीसरा शेल है, फिर चौथा, फिर सातवें तक चले जाते हैं. जो उनके दरमियान, इसी वजह से वो क्वांटम कहते हैं ना, क्योंकि अगर दरमियान में भी उसकी एग्जिस्टेंस होती तो वो इंटीजर्स ना होते थे. फिर वो होता है कि 1 और 2 के दरमियान 1.5 भी होता है, 2 और 3 के दरमियान 2.5 भी होता है. सो जो आपका शेल है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, वो शेल एक से दूसरे शेल के दरमियान डिसकंटिन्यूटी, हाँ, उसके दरमियान डिसकंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से इसका नाम है क्वांटम. सो ये जवाब था. इस बॉटल को, एक बॉटल को अगर आपने रखा टाइम की डायरेक्शन में, किस टाइम फ्रेम, किस टाइम की लिमिट में, इंटरवल में रखेंगे? प्लांकियन टाइम, 10⁻⁴5. बहुत छोटा टाइम है, इसलिए एक बॉटल दूसरी बॉटल रखने से पहले पहले डिसअपियर हो जाती है, लाइक माउस पॉइंटर. लाइक आप देखिए, यहाँ पे जरा आपको समझ आएगी. ये माउस पॉइंटर है, ये माउस पॉइंटर है, यहां से यहां तक मूव कर गया. क्या आप इसको मूवमेंट कहेंगे? ये मूवमेंट नहीं है. यहां पे जो था वो डिम हो गया, खत्म हो गया, बुझ गया है, उससे अगले वाला रोशन हो गया. दिस इज नॉट द मूवमेंट. आपको पता है माउस पॉइंटर मूव नहीं कर रहा होता बेसिकली. वो बल्ब जल गए, वो बल्ब बुझ गए. यानी माउस पॉइंटर जब यहाँ पे था तो बल्ब जले हुए थे इस जगह के पिक्सल्स, और जब यहाँ पे आ गया तो पिछले वाले बुझ गए. तो हमें मूवमेंट लगती है, मूवमेंट है नहीं. एग्जैक्टली सेम लाइक दैट कि डिसअपियर हो गए पिछले विद इन द प्लांकियन टाइम. इसलिए एनर्जी कंटेंट इसको जमा नहीं होता. बट दिस इज डिस्प्यूटेबल. दिस इज दैट्स अ थ्योरी कमिंग फ्रॉम द आशराइट्स एंड बीइंग सपोर्टेड बाय द क्वांटम, बट नॉट येट. देयर आर ओनली 3 or 2 पेपर्स, और वो भी कनाडा से, इस बात पर कि जो ऑस्पेंस्की की 4th डायमेंशन है, ये वाली टाइम डायरेक्शन में कॉपियां किस उसूल पर जोड़ेंगे. लेकिन फिलहाल आपको मैंने आइडिया देना था और वो दे दिया कि 4थी डायमेंशन है टाइम की, उसमें भी वही कॉपियां आप जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा. नेक्स्ट वही मैंने दोबारा लिखी है आपकी इक्वेशन. ये बेसिस वेक्टर है और ये कंपोनेंट है. एक्सेलरेशन की फॉर्म में ये 0 है. तो जो ऑब्जेक्ट, ये आप ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट है इस वक्त नई स्लाइड में. ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फॉलिंग बॉडी है, लाइक सेब गिर रहा है. तो फॉलिंग बॉडी जो है फॉलोइंग द जियोडिजिट, और फॉलोइंग द जियोडिजिट बेशक कर्व्ड है लेकिन विद 0 एक्सेलरेशन. जो बात शुरू में हमने कोहेरेंस प्रिंसिपल शुरू करने से पहले की थी कि गिरता हुआ ऑब्जेक्ट 0 एक्सेलरेशन फील करता है, वो ये वाला 0 है. आप अगले वाले में, हाँ, ये बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोडिजिट्स में पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं इन पे नहीं रुकता. तो नेक्स्ट जो है, ये बात भी हम कर चुके हैं, मैंने खुद की थी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वर्सेस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ये होती है कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में एक ट्राइंगल का सम जो है मोर देन 180 होता है,
लेकिन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में इट इज इम्पॉसिबल। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में इम्पॉसिबल है कि पैरेलल लाइंस जो है वो क्रॉस करें, लेकिन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई महसूस होती है। और पता कैसे चलता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो मैं 1 मिनट फिर रुकूंगा। पता कैसे चलता है कि ज्योमेट्री यूक्लिडियन है या नॉन यूक्लिडियन है? हमें कैसे पता? हम तो जमीन पे रहते सारी उम्र ये समझते रहे कि यूक्लिडियन है, हम समझते रहे जमीन यूक्लिडियन है। हम एक लाइन लगाते थे बोर्ड पे, कहते थे हमने सीधी लाइन लगा दी है, और गौर करें तो जमीन गोल है, टू सम एक्सटेंट वो लाइन कर्व्ड है जो हमने ड्रॉ की है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा पैरेलल ट्रांसपोर्ट? ये रिमान का एहसान है हम पे। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रिमान का। रिमान का नाम सुना हो सबने? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रिमान का। मैंने उसके साथ, उसकी किताबों के साथ कई साल गुजारे। ये रिमान का कमाल है कि उसने हमें एक ऐसा तरीका बताया कि हम यहाँ पे इस कमरे में भी हैं तो हम अफाइन कनेक्शंस यूज करके मालूम कर सकते हैं कि वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन अ सरफेस व्हिच इज इनएक्चुअल कर्व्ड सरफेस। We just call it flat, but it is not flat. क्या होता है पैरेलल ट्रांसपोर्ट? पैरेलल ट्रांसपोर्ट ये होता है कि अगर सरफेस यूक्लिडियन होगी तो जब आप एक एरो उस पर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, एक एरो से मुराद वेक्टर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, तो जब उस पर आप एक वेक्टर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, पैरेलल से मुराद ये है कि वेक्टर अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, तो वो जब वापस आएगा वो उसी के ऊपर आएगा, उसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा, एग्जैक्टली ऊपर आएगा, जरा सा भी डिविएट नहीं करेगा दाएं बाएं। वही ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हैं जमीन पर, पैरेलल ट्रांसपोर्ट, लेकिन आपका वेक्टर थोड़ा सा डिविएट कर जाएगा। ये देखिए, ये मैंने खुद बनाई है एनिमेशन। ये देखिए, ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस तरफ वेक्टर जब डायरेक्शन चेंज किए बगैर आता है और फिर जब वापस जाता है तो सुपर इम्पोज होने की बजाय 90 डिग्री बना रहा है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसपोर्ट। जब कभी भी किसी कर्व को आप चेक करें कि वो कर्व अगर पेपर पे डाली हुई है, सिर्फ चाहे जितनी मर्जी कर्व बनाएगी, पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाएं, वेक्टर वापस अपने ऊपर आएगा। लेकिन अगर वो किसी स्फीयर पर है या भी किसी और इरेगुलर सरफेस पर है या उस सरफेस पे कर्व है, तो वो वापस वहां नहीं आएगा, थोड़ा सा एंगल बनाएगा, और उसी एंगल को बताती है क्रिस्टोफर सिंबल। सॉरी, ये एक्सेलरेशन 0 है, एस्ट्रॉइड जा रहा है स्पेस में, जियोडी से कर्व शो हो रहा है, बट इट इज नॉट कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आखिर में हम पहुंचे हैं, 4-5 स्लाइडें रह गई है। ये मैं पहले दिखा चुका हूं कि ये बेसिस वेक्टर है। बेसिस वेक्टर को मैं पहले बता चुका हूं कि क्रिस्टोफर सिंबल हमें देता है। यहां मैंने सिर्फ एक बेसिस वेक्टर के सामने सिंबल लिख दिया है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि एक बेसिस वेक्टर सिंबल नहीं देता। हमें अगर 2D की सरफेस है तो 8 बेसिस वेक्टर चाहिए एक क्रिस्टोफर सिंबल लेने के लिए। लेकिन अगर 4 डायमेंशनल है, स्पेस टाइम है, तो हमें 16 वेक्टर्स, बेसिस वेक्टर चाहिए एक क्रिस्टोफर सिंबल लेने के लिए। और ये 16 के 16 हमें 256 जो है कंपोनेंट्स देते हैं, 256 कंपोनेंट्स। इसलिए फिजिक्स के स्टूडेंट जनरल रिलेटिविटी से भागते हैं। एक पॉइंट के लिए, ये देखिए मैंने कर्व कर दिया अपने पाम को। अगर आप इस छोटी सी पाम को, इसकी कर्व को रिमानियन मेथड से निकालना चाहें, हर पॉइंट पर आपको 256, चलिए ये 2D की सरफेस दिखाई दे रही है तो तादाद कम कर ले, लेकिन हर पॉइंट पे इतने आपको कंपोनेंट्स, जैसे मैम बता रही है, स्टडी करने पड़ते हैं। और ये बहुत हेक्टिक काम है, आजकल कंप्यूटर्स करते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, I am investing myself almost more than 20 years in general relativity। और मैं आपको एक बात बताऊं राज की, कि कभी भी आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन को कोई स्टूडेंट पूरा नहीं करता। सारे उसको स्फीयर पे अप्लाई करते हैं, सारे उसको। स्फीयर तो एक रेगुलर स्फीयर होती है, स्फीयर तो एक सीधी सीधी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसको किसी ऐसी, जैसे पहाड़ होता है, उस पर अप्लाई करेंगे, आपके 10 साल लग जाएंगे, आप उसके पॉइंट सारे नहीं निकाल सकते। कंप्यूटर्स आ गए, काम तो हो रहा है जाहिर है बड़े शहर, बड़े मुल्कों में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सर खपा रहा था तो मुझे बहुत वक्त लगा ये जानने में कि मैं कर ही नहीं सकता।
यानी एक ऐसी रेगुलर शेप है जैसे हमारे फोटोहार में जमीन है, तो उसको अगर आप इक्वेशन फील्ड इक्वेशन से निकालना चाहते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए सारे के सारे लोग स्फीयर पे अप्लाई करते हैं। श्वार्ट्ज़शील्ड मैट्रिक्स जो है, श्वार्ट्ज़शील्ड, वो आपको ब्लैक होल देती है, क्या है? स्फीयर, सारी स्फीयर्स है। सो अब आखिर में आगे हम यहां पे देखिए कि पहले मैंने दी है जियोडेसी की इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, राइट साइड पे कर्व है। जरा ये बात ध्यान में रखनी है, आने वाला हूं मैं आखिरी पॉइंट पे, जो मेजर पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कर्व। वो एक्सेलरेशन जो अचानक डिसअपीयर हो गया था, जिसने आइंस्टाइन ने एक आदमी को गिरते हुए देखा, एक्सेलरेशन सडनली डिसअपीयर्ड, इट बिकेम जीरो। वो एक्सेलरेशन अब दोबारा रीअपीयर होने वाला है, और वो एक्सेलरेशन रीअपीयर होगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन बट इन द फॉर्म ऑफ, तो एक्सेलरेशन जो है वो नाउ यू कैन लुक एट द एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ कर्व। और ये अजीब बात है, यानी कोई अगर मुझे कहे कि भाई आपका जो चेहरा है ना, ये पहले वेलोसिटी होता था, यानी ऐसी अजीब बात है ना कि वो कहे कि ये जो शेप है, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। और आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन इसी बात को शो करती है, लेफ्ट साइड पे कर्व है, राइट साइड पे मास है। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन है सिंपली, और ये कर्व है, तो जरा देखिए, हाँ, रिची टेंसर में हम इंपोर्ट करते हैं। रिची टेंसर भी रिमान के बाद वॉल्यूम के लिए, रिमान का टेंसर सरफेस के वॉल्यूम को बताता है, रिची का टेंसर, रिमान का टेंसर सरफेस के एरिया को बताता है, और रिची का टेंसर सरफेस के ऊपर वॉल्यूम को बताता है। यानी यूं समझ लें कि आप स्फीयर जमीन के ऊपर हैं, जमीन की स्फीयर है, तो उसके ऊपर आप एरिया की पैमाइश करने के लिए रिमानियन टेंसर यूज करते हैं, लेकिन अब उसका वॉल्यूम भी तो है ना, यानी उसकी आल्टीट्यूड को अगर ऐड करें, आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को तो ऐड करते हैं तो रिमानियन यूज करते हैं, लेकिन उसमें आल्टीट्यूड को ऐड करें तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम डालना पड़ता है। तो रिची टेंसर आपको हेल्प देता है। रिची टेंसर फिर आपको पूरी आउटर स्पेस, क्योंकि उसमें वॉल्यूम एडेड है, तो पूरी आउटर स्पेस की शेप देता है रिची टेंसर। इस फॉर्म में मैंने लिखा है जरा सिंपल करके, ये जरा और भी लंबा लिखा जाता है रिची टेंसर, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये होगा। अब आ जाए मैटर टेल स्पेस हाउ टू मूव। ये प्रोफेसर ये आइंस्टाइन का एक दोस्त है, मुझे हर वक्त उसका जॉन व्हीलर, ये जॉन व्हीलर का कॉल है कि मैटर टेल स्पेस हाउ टू कट एंड स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। ये बड़ा मशहूर है, ये याद कर लें, फिजिक्स के स्टूडेंट्स और मैथ के स्टूडेंट्स को ये कोट याद होनी चाहिए। मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कट, स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। तो इसमें यही हमने देखा कि राइट साइड पे क्या न्यूटन की इक्वेशन है, उसकी मास पर फॉर्म लिखी हुई है, और राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या है, वही एक्सेलरेशन फोर्स की फॉर्म में वहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मास इज कर्विंग द स्पेस। और एक अहम बात यहां पे बताता है, इसमें मैंने नीचे लिखा है कर्व स्पेस बीइंग के को छोड़ दे, E इक्वल्स mc²। इसका मतलब कि आइंस्टाइन की जो अब पिछली थ्योरी है वो दोबारा जनरल रिलेटिविटी में ऐड हो रही है कि जब आप अगला टेंसर यूज करेंगे, ये नेक्स्ट टेंसर है स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर। स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर का जो पहला एलिमेंट है T00, ये है E इक्वल्स mc²। सारा कंटेंट प्लैनेट अर्थ का, सूरज का, न्यूट्रॉन स्टार का, ब्लैक होल का, जब भी आप स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर डालेंगे, जो इक्वेशन की राइट साइड पे लिखना होता है, जब भी आप स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम ये ताऊ म्यू न्यू डालेंगे, आपको पहले इसके टेंसर के एलिमेंट में E इज इक्वल टू mc² को डालना पड़ेगा। पूरे का पूरा कंटेंट ऑफ एनर्जी यहाँ आ जाता है, पीछे बच जाता है थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ये शीयर स्ट्रेस, मोमेंटम डेंसिटी, ये फ्लक्स वगैरह, ये सारे फिर इंपोर्ट कर देंगे पूरे ताऊ म्यू न्यू। और अब बिल्कुल आखिरी दो स्लाइड्स हैं, ये मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट है या थर्ड लास्ट है। यहाँ पे डिविएशन फ्रॉम जियोडेसिक, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना, इसलिए मैं फिर दोबारा सेट होकर बोलने लगा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब जियोडेसिक पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, अब तक बातें तो समझ में आई है ना, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट है वो जियोडेसिक पे जा रहा है, सेब है वो गिरा है, तो जब वो गिरा तो जियोडेसिक पे आ गया, जब गिरा नहीं था और लगा हुआ था रफ के साथ तो जियोडेसिक पे नहीं था, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही थी। कौन बताएगा कि जब सेब लटका हुआ था शाख के साथ तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही थी? टेंशन।
कोई बोला टेंशन या मुझे सुनाई दिया? अगर आप टेंशन बोले तो मेरी तरफ से अपने दिल में ताली बजाए। क्लैप जिसको कहते हैं कि टेंशन की फोर्स जो है उसको उस पर लगी हुई थी। फोर्स अगर लगी हुई है तो फिर वो जियोडिजिक पे नहीं है। बीइंग डिविएटेड, फोर्स का काम है चीजों को। मैंने यह जुमला भी लिखा है, यू कैन बी डिविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ, सिराते मुस्तकीम। You can be deviated from the right path only by an external force. So वो जो हैंगिंग एप्पल है शार्प के साथ, उस पर टेंशन की फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब जब वो लटका हुआ है उस वक्त डिविएट हो रहा है। अजीब बात है ना? यानी जब वो लटका हुआ है वो अपने असल पाथ से, जो राइट पाथ है, उससे डिविएट हो रहा है। वो जिस इक्विलिब्रियम के फॉर्म में जाना चाहता था, जो कायनात की नेचर है, वो नहीं जा सकता। टेंशन हो रही है उससे बड़ी। जो ही आप उसको काटेंगे, as soon as you cut it, तो वो कहां चला जाएगा? जियोडिजिक पे, ऑन अ राइट पाथ। और जियोडिजिक पे जब आएगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चला जाएगा। और याद रखिए, मैंने आपको बार बार दिखाई है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है। तो जब वो गिरेगा तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला जाएगा। और ये बात तो आप सब जानते हैं बचपन से कि कांस्टेंट वेलोसिटी और समथिंग एट रेस्ट आर इक्विवेलेंट। सो इसका मतलब कि वो सेब जब गिर रहा है उस वक्त एट रेस्ट है, या एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू एट रेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेब गिर रहा है तो उस वक्त डिविएट नहीं हो रहा। प्लैनेट अर्थ भी एट रेस्ट है, वो भी एट रेस्ट है। दे आर जस्ट मीटिंग। जैसे कर्व पर दो आदमियों को मैंने चलता हुआ दिखाया कि वो आगे जाके मिल जाएंगे, ऐसे ही सेब और जमीन आपस में मिल जाएंगे, जिसको आप कहते हैं चीजों का गिरना। वो चीजों का गिरना नहीं है, वो दो लोगों का कर्व पाथ पर चलकर आगे जाके मिलना है, जिसको आप चीजों का गिरना कहते हैं। हाउ अमेजिंग इज दिस! जनरल रिलेटिविटी इज सो अमेजिंग। और यहाँ पे मैंने ये जो तस्वीर बनाई है, इसमें ये जो रोल राउंड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट, बच्चों का खेल खिलौना, ये अपनी मर्जी से रोल होता रहेगा। ये जियोडिजिक पे नहीं है, जमीन पे है। मैं जस्ट मिसाल के लिए, एनालॉजी के लिए लिखा है। अपनी मर्जी से रोल होता रहेगा जहां तक चला जाए गैलीलियन इनर्शिया की बेस पे। लेकिन अगर इसको आप हटाना चाहते हैं कि इस रास्ते से हट जाओ, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स यूज करनी पड़ेगी। सो ये सेब और ये उसका गिरना, ये अब अपने सीधे रास्ते पे, और जब तक लटका हुआ था तब तक सीधे रास्ते पे नहीं था। आखिर में आ गए हम बिग लैम्डा। हाँ, यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं, अब तक जितनी बार मैंने इक्वेशन दिया, फील्ड इक्वेशन, मैंने यहाँ पे बिग लैम्डा नहीं लिखा। यहाँ अब लिखा, लेकिन पहले जितनी बार पिछली में भी देखे, इससे पीछे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये एक बड़ी दिलचस्प मैं अर्ज करने लगा हूँ बात कि ये 1914 तक आइंस्टाइन की ये इक्वेशन थी। 1916 में आई है फाइनल इक्वेशन, लेकिन 1914 में एक बार उसने फाइनल समझ के दे दी थी। सारी इक्वेशन ठीक थी, मगर बिग लैम्डा के बगैर कायनात क्रंच हो रही थी। आपने सुना भी होगा बिग क्रंच का आइडिया, कि अगर ये इक्वेशन है तो कायनात, देखा आप ऑब्जेक्ट को ऊपर गिराएं, इसकी वेलोसिटी पहले तेज होती है, फिर स्लो होती है, फिर स्लो होती है, और एक जगह पे जाके जीरो हो जाती है, फिर वो बैक आता है। तो कायनात जो है बिग बैंग ही समझ ले। उस वक्त तो अभी बिग बैंग का कंसेप्ट नहीं था 1914 में, लेकिन आप अपने लिए समझ लें कि बिग बैंग ने थ्रस्ट आउट किया सारे कायनात की चीजों को। अब उनकी वेलोसिटी स्लो डाउन होनी चाहिए थी। एक टाइम पे वो जब जीरो हो जाएगी, जैसे बॉल ऊपर गया, तो फिर क्या क्रंच बैक होगी। तो क्रंच बैक होगी तो बाप जो है वो बेटे से, बेटा जो है बाप से पहले पैदा होगा, यानी माजी उलट हो जाएगा, हर चीज फ्यूचर से उल्टा चलना शुरू हो जाएगी यूनिवर्स। तो ये ऐसा अमेजिंग ख्याल था कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिग क्रंच पॉसिबल नहीं है। तो आइंस्टाइन सोच में पड़ गया क्या करूं, और उसने तुक्के से जो चीज लगाई बिग लैम्डा, वो सच साबित हुई 1998 में कि कायनात इज बीइंग एक्सेलरेटेड इन फैक्ट। सो 1998 में इत्तेफाक से दुरुस्त साबित हुई। उस वक्त लिखा गया था कि एवरीथिंग आइंस्टाइन सेड प्रूव्ड ट्रू। और वो तो फिर हादसा था कि आइंस्टाइन ने तुक्के से जो चीज लगाई वो हमारे 98 में, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल रिलेटिविटी को पढ़ना, उस वक्त आइंस्टाइन का ये बिग लैम्डा प्रूव हो। यहाँ पे मैं बिग लैम्डा के बारे में एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हुक्स लॉ आप लिखें, हुक्स लॉ को कोई कौन नहीं जानता, छठी सातवीं जमात में हम पढ़ते हैं, -kx। अगर हुक्स लॉ आप लिखें या उसको चले उसको परफॉर्म करें, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यूं यूं करना शुरू हो जाएगा ना हुक्स लॉ में।
लेकिन अगर आप उसके साथ एक छोटी सी बारीक सी एनर्जी ऐड कर दें, प्लस का साइन डाल के, प्लस का साइन उसके साथ डालें, माइनस की एक्स लिखा हुआ हो ना, मैं आपको ज़बानी बताता हूँ अगर ये बात नहीं हो जाए, माइनस की एक्स एफ इक्वल माइनस की एक्स लिखा हुआ हो ना, उसके साथ एक आगे प्लस डालें, खुद से साइंसदान बन जाए, और वहां पे छोटी सी वैल्यू डालें 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने अब मूव कराया है वो हर बार जब ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, वापस आएगा, हर बार थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि वो आपने ऐड कर दिया ना प्लस में, फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद अगली बार थोड़ा और आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उससे अगली बार थोड़ा और आगे जाएगा, क्योंकि यू हैव एडेड अ लिटिल अमाउंट विद माइनस के एक्स. एग्जैक्टली दैट थिंग इज बिग लैम्डा फॉर द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन. कि यहाँ पे ये जो डिजिट स्केलर के साथ ये जो जगह है यहाँ पे डाल दिया प्लस के साथ, हमने बिग लैम्डा मैट्रिक टेंसर की मदद से, ये हल्की सी इसकी वैल्यू है डार्क एनर्जी. अब आज के दौर में से कहते हैं इस चीज को डार्क एनर्जी कहते हैं. ये पुश कर रही है आउटसाइड, कायनात की हर चीज बाहर की तरफ जा रही है. कायनात सारी की सारी 1998 में प्रूव हुआ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के जरिए कि कायनात, कुरान में भी है, अल्लाह अपने हाथों से कायनात को फैला रहा है, तो कायनात सारी की सारी बाहर की तरफ फैल रही है. ये थोड़ा सा हुक्स लॉ के साथ ऐड किया गया है अमाउंट बिग लैम्डा की, वो बहुत मामूली सी अमाउंट, लेकिन वो कायनात को मुसलसल फैलाती चली. मेरा जाती ख्याल जो है, अगर मैंने देखा कि 1-2 लोगों का और भी नेट पे यूरोप में मैंने पढ़ा, मेरा जाती पर्सनल, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, मेरा जाती ख्याल ये है कि ये डार्क एनर्जी जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. पूरे ग्लोब ऑफ द यूनिवर्स जो है वो घूम रहा है, और जब कोई चीज घूम रही होती है तो इनसाइड दैट थिंग थिंग्स वांट टू गो आउटसाइड. यानी आप एक चीज के अंदर, मैं कहता हूँ पूरी कायनात का ग्लोब जो है ना वो तेजी से घूम रहा है, और हम जो उसके अंदर हैं हम सारे थ्रस्ट आउट हो रहे हैं बाहर की तरफ. तो ये मेरा पर्सनल ख्याल है. आई एम नॉट अ साइंटिस्ट बट आई हैव पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, पुट इट, ताकि आप जब पीएचडी करें तो हो सकता है इस तरह का थीसिस आप इख्तियार कर ले कि हम इस पे काम करते हैं कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक चीज जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं कि फिर जब ये पता चल गया कि रोशनी गिरती है जमीन पर, तो जब रोशनी गिरती है जमीन पर, रोशनी वेव है, तो डॉपलर शिफ्ट होना चाहिए. इसलिए जमीन पे गिरने वाली रोशनी में डॉपलर शिफ्ट होता है. और डॉपलर शिफ्ट से मुराद ये है कि जो ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट है वहां से अगर खड़े होकर आप देखेंगे, जमीन के ऊपर खड़े होकर देखेंगे, तो आती हुई रोशनी ब्लू शिफ्ट दिखाएगी, क्योंकि उस साइड से वो आपको स्क्वीज होगा उसका लैम्डा. लेकिन अगर उसके पीछे आप चले जाएं, यानी आप उसकी बैक से खड़े हैं और देखें कि रोशनी नीचे जा रही है, तो रेड शिफ्ट दिखाएगी. इसका मतलब है कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट इसमें आपको नजर आएगा, एनर्जी कंटेंट भी चेंज नजर आएगा. और एक बात जो फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन और बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि हायर एनर्जी कंटेंट का क्या ताल्लुक है स्लोइंग द टाइम के साथ. आपने देखा कि जब स्पेशल रिलेटिविटी में ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से, यानी नियर क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो टाइम स्लो हो जाता है. ये तो पढ़ा हुआ है सबने कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी टाइम स्लोज डाउन. वहां पे हो क्या रहा है बेसिकली, सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं ना टाइम का, दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी था, और तीसरा मास इंक्रीमेंट का भी तो था. तो आज जरा मास इंक्रीमेंट वाले को रिलेट करें स्लोइंग डाउन द टाइम के साथ, ताकि बात आपको मैच करती हुई नजर आएगी. जब आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम स्लो हो रहा है, स्पेशल रिलेटिविटी की मैं बात कर रहा हूं फॉर 1 मिनट, तो आपने कभी रिलेट नहीं किया, तीनों को अलग रखते हैं. ये बहुत गलत करते हैं हमारे टीचर्स. टाइम डायलेट हो रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, साइड पे चलिए, मास इंक्रीज हो रहा है, साइड पे चलिए. जरा रिलेट करें, मास इंक्रीज हो रहा है उसी वक्त टाइम भी स्लो हो रहा है, इनको रिलेट करें. इसका मतलब ये होगा कि द एनर्जी कंटेंट इज गेटिंग हायर एंड हायर एंड क्लॉक्स आर गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर. ये आपस में काज एंड इफेक्ट के तौर पे अटैच नहीं कर रहा हूं मैं, ये एट द सेम टाइम हैपनिंग हो रही है. ठीक है, अब इसी हैपनिंग को जरा यहां पे देखें कि जनरल रिलेटिविटी में अपना क्या है. देखिएगा जरा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर एनर्जी कंटेंट प्लैनेट का हायर होगा,
प्लैनेट अर्थ, सूरज, स्टार्स, गैलेक्सीज, तो वो क्या है? डेंस एनर्जी है और उसका कंटेंट हायर है, तो टाइम मस्ट स्लो देयर एज वेल। इसकी वजह इसकी एनालॉजी की बड़ी अच्छी मैंने तस्वीर बनाई थी, अगर फखरान कर सके तो एनालॉजी की तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। इसकी एनालॉजी के लिए जो मैंने तस्वीर बनाई है उसको भी रिवर एनालॉजी कहते हैं। जैसे मैंने पहले टाइम के लिए रिवर एनालॉजी दी थी, इसको भी रिवर एनालॉजी कहते हैं। ये अभी रिवर नहीं आया, वो आखिरी बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। अच्छा देखें कि ये कंटेंट एनर्जी का यानी प्लैनेट के साथ वाला क्लॉक जो है ये ज्यादा स्लो होगा, उसके साथ वाला क्लॉक थोड़ा सा तेज होगा, उसके साथ वाला थोड़ा सा और तेज होगा। जब आपको मैं अर्ज कर रहा था कि ड्रॉपलेट शिफ्ट पैदा हो जाता है ग्रेविटी में, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि एक वेवलेंथ, एक लैम्डा, सिंगल लैम्डा की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल लैम्डा एक छोटी सी नन्ही सी क्लॉक सोच लें, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली क्लॉक, ये बहुत बारीक सी, उस छोटी सी क्लॉक की भी निचली जो साइड होगी वो स्लोअर होगी ऊपर वाली साइड की निस्बत। जस्ट नॉलेज ये इसका मतलब कि ग्रेडियंट पैदा होगा। ग्रेडियंट तो सब जानते हैं ना क्या होता है, यानी कि प्लैनेट के बाहर की जितनी फिजा है वो टाइम का दरिया बन जाएगी, रिवर ऑफ टाइम, और इस तरह से काम करेगी कि जैसे दरिया में किनारे के पास वाला वेलोसिटी का वेक्टर छोटा बनेगा, स्लो होता है ना पानी किनारे का, दरिया के किनारे पे, और सेंटर वाला वेलोसिटी का वेक्टर बड़ा बनेगा। इसी वजह से कर्ल का इफेक्ट पैदा होगा अगर आप उसमें व्हील डाल दें, क्योंकि जो किनारे के साइड वाला ग्रेडियंट होगा किसी भी जगह पे डालेंगे सिवाय एग्जैक्ट सेंटर के, दरिया में किसी भी जगह पे व्हील डालेंगे कर्ल करेगा। वजह यह है कि उसकी एक साइड हमेशा वेलोसिटी की स्पीड कम होगी, ताकत, और दूसरी ज्यादा, इसलिए कर्ल करेगा। एग्जैक्टली वो क्या करेगा कि अगर उसमें कश्ती को आप खाली छोड़ दें तो कश्ती किनारे से जा लगेगी, हर बार ऐसा होगा, हमेशा कश्ती किनारे से जा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये कश्ती है, उसकी किनारे वाली साइड का ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर छोटा है और दूसरी साइड वाला वेक्टर बड़ा है, तो बड़ी साइड वाला उसको धक्का देगा और कश्ती मुड़ेगी किनारे वाली साइड पे, और ऐसे कर्व बनाते हुए, एग्जैक्ट एनालॉजी है वैसे ये टाइम के साथ, कर्व बनाते हुए किनारे से ठक करके जा लगेगी। जैसे ऑब्जेक्ट गिरता है, मैडम को ऑफिस में यही बात बता रहा था कि उसका जो टाइम कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो ऐसे मूव होता चला जाता है जब सेब गिर रहा होता है कि वो कर्व बनाते हुए जमीन से टकराता है। अब इसकी एनालॉजी जमीन के साथ कैसे है, ऊपर मैंने तस्वीर अभी डाली थी। आप यूं सोचे कि जमीन पे हम खड़े हैं और जमीन से आसपास सारी फिजा टाइम का दरिया है, तो दरिया अगर है तो किनारा जमीन हुआ ना, तो किनारे के पास वेक्टर स्लो होना चाहिए ना, किनारे के पास टाइम स्लो होगा। जो आप उस ग्रेडियंट में अपवर्ड उठेंगे टाइम आपका तेज गुजरना शुरू होगा, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। बुर्ज खलीफा पर पिछले साल इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल का टाइम सम्स सर्टेन एक्सटेंट ऑफ लिमिट, वो जो है स्लोअर है नीचे वाली का, और उस पर फिर मजहबी लोगों ने भी सवाल उठाया कि क्या रोजा ऊपर वालों को नीचे वालों को डिफरेंट टाइम पे खोलना चाहिए। हम हमेशा इन मसलों की